بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم پیش کرنے جا رہے ہیں معجزہ مولا مشکل کشا حضرت علی علیہ السلام۔ شہر ایران میں ایک لکڑہارا رہتا تھا جو کہ بہت ہی غریب تھا۔ وہ لکڑیاں بیچ کر اپنا اور اپنے بال بچوں کا گزارا کیا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی لڑکی سے کہنے لگا کہ بیٹی ہمسائے کے گھر سے سگریٹ سلگا لاؤ۔ جب لڑکی سگریٹ سلگانے کے لیے گئی تو اس نے دیکھا کہ ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی ہے۔ اس لڑکی کا دل کلیجی کھانے کو چاہا لیکن اس عورت نے توجہ نہ کی۔ لڑکی نے دروازے سے باہر آ کر سگریٹ کو بجھایا اور پھر سگریٹ سلگانے کے لیے اندر چلی گئی کہ شاید اب کی دفعہ ہمسائی عورت مجھے کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر پھر بھی اس نے کلیجی کھانے کو نہ دی۔ لڑکی مایوس ہو کر گھر چلی آئی۔ اتنی دیر میں سگریٹ سلگ کر آدھا رہ چکا تھا۔ جب باپ کو سگریٹ دیا تو اس نے کہا بیٹی آدھا سگریٹ خود پی آئی ہو۔ کہا نہیں بابا جان، ہمسائی عورت کلیجی بھون رہی تھی اور میرا دل کلیجی کھانے کو چاہتا تھا، اس لیے میں بار بار سگریٹ کو بجھا کر جلانے کے لیے جاتی تھی کہ شاید مجھے وہ عورت کلیجی کھانے کے لیے دے دے، مگر اس نے مجھے نہیں دی۔ بابا جان آپ میرے لیے کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہارے نے کہا بیٹی ہمارے گھر میں تو اتنے پیسے نہیں کہ ایک ماچس خریدی جا سکے، میں کلیجی کہاں سے لاؤں؟ لڑکی نے کہا بابا جان کل ضرور کلیجی لائیں۔ لکڑہارے نے کہا اچھی بیٹی 2 دن کچھ نہ کھاؤ، میں 2 دن کی لکڑیاں جمع کر کے بیچوں گا اور تم کو کلیجی لا دوں گا۔ لڑکی نے منظور کر لیا۔ لکڑہارا جنگل میں جا کر لکڑیاں جمع کر کے رکھ آیا۔ دوسرے دن جب جنگل میں گیا تو دیکھا کہ لکڑیاں جو اس نے جمع کی تھی وہ جل کر راکھ ہو چکی تھی۔ وہ رونے لگا، روتے روتے گش کر گیا۔ عالم گش میں دیکھا کہ ایک نقاب پوش کھڑے ہیں۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، اور زمین سے چند سنگریزے اٹھا کر کہتے ہیں کہ یہ لے لو، جب ان کو بیچو تو مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ صلوات۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ جب لکڑہارا ہوش میں آیا تو دیکھا کہ وہی سنگریزے اس کے ہاتھ میں تھے۔ اس نے وہ جیب میں ڈال لیے اور گھر چلایا۔ گھر جا کر دروازے کے پیچھے چھپا رہا۔ بیٹی نے دیکھا کہ باپ کو گئے ہوئے دیر ہو گئی ہے۔ وہ باہر آئی، دیکھا کہ باپ دروازے کے پیچھے چھپا ہوا ہے۔ کہا بابا جان اندر آ جائیے۔ باپ نے کہا بیٹی مجھے تم سے شرم آتی ہے، وعدہ کر کے گیا تھا کہ تمہارے لیے ضرور کلیجی لاؤں گا، لیکن تمام لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی ہے۔ بیٹی نے کہا بابا جان آپ اندر آ جائیے، خداوند کریم ہمیں بہت کچھ دے گا۔ جب شام ہوئی لکڑہارے نے جیب میں ہاتھ ڈالا، وہی سنگریزے نکال کر بیٹی کو دیے کہ لو بیٹا ان سے کھیلو۔ لڑکی نے لے کر ایک کمرے میں پھینک دیے۔ الصبح جب لکڑہارے کی بیوی نماز پڑھنے کے لیے اٹھی تو دیکھا کہ کمرے میں ہر طرف روشنی ہی روشنی دکھائی دیتی ہے۔ ڈر کر باہر آئی، لکڑہارے سے کہا ہمارے کمرے میں ہر طرف آگ لگی ہوئی ہے۔ لکڑہارے نے اٹھ کر دیکھا کمرے میں جوہرات چمک رہے تھے۔ صلوات۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس نے ان پر چادر ڈال دی۔ صبح ایک ہیرا لے کر جوہری کے پاس گیا اور کہا کہ یہ ہیرا تم خرید لو اور اس کی قیمت مجھے دے دو۔ جوہری بیشی قیمت ہیرا دیکھ کر حیران رہ گیا۔ لکڑہارے سے کہا گھر سے بوریاں لے آؤ، جس قدر تم سے اٹھائی جائے بھر کر لے جاؤ، یہ اس ہیرے کی قیمت ہے۔ لکڑہارے سے جس قدر بوریاں اٹھائی گی وہ لے گیا اور زمین خریدی جہاں مولا مشکل کشا اسے سنگریزے دیے تھے۔ صلوات۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ۔ اس نے وہاں ایک نہایت ہی شاندار محل بنوایا جس میں نہایت آرام اور آسائش کی زندگی بسر کرنے لگا۔ ایک دن لکڑہارا اپنی بیوی سے کہنے لگا اب مجھ پر حج واجب ہو گیا ہے، میں حج کرنے جا رہا ہوں، میرے بعد ہر مہینے مولا مشکل کشا کا ختم ضرور دلانا۔ چند دنوں کے بعد لکڑہارے کی بیوی نے اپنی بیٹی سے کہا جاؤ
7 किस्म की मिठाई लाओ, उस पर मौला मुश्किल कुशा का खत्म दिलाएं। बेटी ने कहा, अम्मा अब तो हम बहुत ही अमीर हो गए हैं, हम नहीं रंग रंग की मिठाइयों पर खत्म दिलाते। वालिदा खामोश हो रही। कुछ दिनों के बाद दोनों माँ बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए गई कि एकदम से शोर हुआ कि हमाम को खाली किया जाए, क्योंकि बादशाह की मलका और बेटी हमाम में गुस्ल करने के लिए तशरीफ ला रही है। चनाचा सब लोग चले गए, लेकिन लकड़हारे की बीवी और बेटी ना गई। उन्होंने कहा, हम तो मलका से भी ज्यादा अमीर हैं, हम नहीं जाएंगे। इसी असना में मलका और शहजादी हमाम में तशरीफ लाई। उन्होंने सुना हुआ था कि एक लकड़हारा बहुत ही अमीर हुआ है। जब लकड़हारे की लड़की हमाम से बाहर निकली तो शहजादी ने देखा कि उसके गले में बहुत ही कीमती मोतियों का हार है। शहजादी ने पूछा कि यह हार तुमने कहाँ से लिया है? लकड़हारे की लड़की ने कहा, आओ हम तुम सहेलियां बन जाए, ये हार तुम ले लो, मैं घर जाकर और पहन लूंगी। शहजादी ने कहा, हम तुम सहेलियां बन गई हैं, इसलिए तुम हमारे घर जरूर आया करो। एक दिन लकड़हारे की लड़की शहजादी से मिलने के लिए गई तो शहजादी गुस्ल कर रही थी। जब गुस्ल करके बाहर आई तो नौकरानी से कहा कि कुंडी से मेरा हार भी लाओ। नौकरानी ने कुंडी पर हार देखा तो गायब था। शहजादी ने कहा कि हार तुमने चोरी कर लिया है। नौकरानी ने कहा कि हमने आज तक आपकी कभी चोरी नहीं की, ये आपकी सहेली का काम है। चनाचा बादशाह को बुलाया गया। उसने लकड़हारे की बीवी और बेटी से पूछताछ की तो उन्होंने कहा कि जब हम गरीब थे हमने उस वक्त भी चोरी नहीं की थी, अब हमने क्यों चोरी करनी थी। लेकिन बादशाह को यकीन न आया। उसी वक्त हुक्म दिया कि दोनों माँ बेटी को कैद खाने में डाल दो और इनके घर के आगे एक दीवार खड़ी कर दी जाए। इधर जब लकड़हारा हज करने के लिए गया, रास्ते में डाकुओं ने सब कुछ लूट लिया। वो बगैर हज किए वापस लौट आया। आकर देखा कि महल के आगे दीवार खड़ी है। लोगों से पूछा कि मेरा अहल खाना कहाँ है और महल के आगे दीवार क्यों खड़ी है। लोगों ने तमाम वाकया बयान किया। लकड़हारा बादशाह के पास आया, तमाम माजरा सुना। बादशाह से कहने लगा, चोरी तो उन्होंने उस वक्त भी नहीं की थी जबकि हम बहुत ही गरीब थे, अब क्यों करनी थी। बादशाह किसी तरह न माना। लकड़हारे ने कहा, अगर उनको कैद से रिहा नहीं करेंगे तो मुझे भी कैद कर लें, क्योंकि मेरी गैरत ये नहीं गवारा करती कि मेरी बीवी और बेटी कैद में रहे और मैं घर में बैठूं। चनाचा लकड़हारे को भी कैद कर लिया गया। जब रात हुई, लकड़हारे ने अपनी बीवी और बेटी को बुलाया और पूछा कि मेरे जाने के बाद मौला मुश्किल कुशा का खत्म दिलाती रही हो। उन्होंने कहा, नहीं। लकड़हारे ने कहा, बस ये इसी कोताही की सजा है। अर्जिया के तमाम रात तौबा करते रहे और रोते रहे। जब नींद आ गई तो आलमी ख्वाब में देखा कि एक नकाब पोश तशरीफ लाए हैं। सलावत अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, और फरमाती हैं, तुम नजर देनी भूल गए थे, इसीलिए ताबे इलाही का नज़ूल हुआ है। लकड़हारी ने कहा, मेरे पास नजर देने के लिए पैसे मौजूद नहीं। उन्होंने फरमाया, अपना बिस्तर उठाओ, नीचे से 5 पैसे बरामद होगी, उनकी शरीने मंगवा कर खत्म दिलाना, तमाम मुसीबत टल जाएगी। सुबह जब लकड़हारा बेदार हुआ, अपना बिस्तर उठाया, नीचे से 5 पैसे बरामद हुए। कैद खाने के दरवाजे पर जाकर खड़ा हो गया। एक नौजवान लड़का घोड़े पर सवार आता हुआ देखा। उसे कहा, लड़के मुझे 5 पैसे की शरीनी ला दो। उसने कहा, बूढ़ा कैदी भी हो गया है फिर भी शरीनी ही खाता है। मेरी तो आज शादी है, मैं बाजार से मेहंदी वगैरह खरीदने जा रहा हूँ, इसलिए मैं तुम्हारा काम नहीं कर सकता। लड़का ये कहकर अभी चंद ही कदम बढ़ा, घोड़े से गिरा और गिरता ही मर गया। जब लड़के के बाप को मालूम हुआ कि मेरा जवान बेटा मर गया है तो वो रोता हुआ कैद खाने के दरवाजे से गुजरा। लकड़हारे ने वही सवाल किया कि मुझे 5 पैसे की शरीनी ला दो। उस आदमी ने कहा कि मेरे साथ जो होना था वो तो हो गुजरा है, मैं क्यों न इस कैदी का काम कर जाऊं। चनाचा उसे शरीनी ला कर दी। उस पर मौला मुश्किल कुशा का खत्म दिलाया। लकड़हारे ने उस आदमी से पूछा कि तुम इतने परेशान क्यों हो। उसने
उसने कहा मेरा जवान लड़का मर गया है और आज उसकी शादी थी। लकड़हारे ने कुछ शरीनी उसे दी और कहा कि इसको पानी में हल करके लड़के के मुंह में डाल देना। चनाचा उस आदमी ने ऐसा ही किया। जो ही पानी का कतरा लड़के के हलक के अंदर उतरा, लड़का कलमा पढ़ता उठ बैठा। इधर दोपहर के वक्त जब बादशाह खाना खाने के लिए बैठा तो देखा कि एक खूबसूरत चिड़िया मुंह में हार लिए आ रही है। चिड़िया ने हार उस खूंटी पर लटका दिया। बादशाह देखकर हैरान हुआ, कहने लगा इसमें जरूर कोई राज पोशीदा है। उसी वक्त लकड़हारे को बुलाया। लकड़हारे ने रात का तमाम वाकया बादशाह को गोशे गुजार किया। बादशाह बहुत खुश हुआ। ताज उतार कर लकड़हारे के कदमों पर रख दिया और कहा कि आप मेरे बाप और मैं आपका बेटा हूँ। जब तक जिंदा रहूंगा आपकी खिदमत करूंगा। सलावत अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। खुदावंद आलम से दुआ है जिस तरह लकड़हारे की मुश्किल आसान हुई, उस तरह तमाम मोमिनीन व मोमिनात की तरह मुश्किलें हल हो जाएगी। महबूद, हमारे गुनाह तेरी रहमत से बड़े नहीं हैं, तो अपनी रहमत से हमारे गुनाह माफ कर दे। ऐ अल्लाह पाक, हमें गुमराही के रास्ते से हटाकर सिरातुल मुस्तकीम के रास्ते पे चलने वाला बना दे। ऐ अल्लाह, ऐसी नमाज पढ़ने की तौफीक अता कर जिस नमाज से तू राजी हो जाए। जिंदगी में ऐसे नेक उमाल करने की तौफीक अता कर जिन अमालों से तू राजी हो जाए। हमें ऐसी जिंदगी गुजारने की तौफीक अता कर जिस जिंदगी से तू राजी हो जाए। ईमान पे जिंदा रख और ईमान पे ही मौत अता कर। ऐ अल्लाह, जो बीमार है उन्हें शिफा कामला अता फरमा। ऐ अल्लाह, जो कर्ज के बोझ तले दबे हुए हैं उनका कर्ज जल्द से जल्द अदा कर दे। ऐ रब्बुल इज्जत, शैतान से हमारी हिफाजत फरमा। ऐ अल्लाह पाक, इस्लाम के दुश्मनों को हिदायत अता फरमा दे। ऐ परवरदिगार आलम, हमें तुझसे मांगना नहीं आता लेकिन तुझे देना आता है। तू हर चीज पे कादर है। ऐ अल्लाह, जो मांगा वो भी अता फरमा और जो मांगने से रह गया वो भी अनायत फरमा। हमारी दुआ अपने रहम से, अपने करम से कबूल फरमा और ये दुआ जो सुन रहे हैं और इसे आगे बढ़ा रहे हैं उसकी सारी परेशानियों, तकलीफों और बीमारियों को दूर फरमा और सेहत तंदुरुस्ती अता कर। ऐ मेरे अल्लाह, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके, मौला मुश्किल कुशा हजरत अली अलैहिस्सलाम के सदके जो ये दुआ सुन रहे हैं उनकी तमाम गुनाहों को माफ फरमा और हर काम में कामयाबी अता फरमा। उनका नसीब खोल दे। आमीन या रब्बल आलमीन। नाजरीन, अपने लिए दूसरों से दुआ जरूर करवाइए, न जाने किसकी जुबान से आपकी तकदीर खुल जाए। मजीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए प्लीज मेरे चैनल पर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। वीडियो देखने का शुक्रिया।